So student, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start determiners. Very good. So are you ready? Very good. Determiners are fixing words which identify, limit or modify the nouns that follow. In our earlier classes, we examined the nature and the usage of the articles. Beside articles, there are other types of words and may precede the nearby determine the meaning of the nouns. As her bag, these mangoes, this pen, many flowers, a little water, each child and so on. Okay, तो determinants means fixing words. किसके साथ करना है? नाउन के साथ, है ना. फिक्सिंग वर्ड्स होते हैं. तो किस तरह से हम इनको पढ़ने वाले हैं? काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स के बेस पर. तो किस किस तरह के डिटर्मिनर्स हैं? डिटर्मिनर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एज बिलो. डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स. ओके, 4 कैटेगरी में करके डिवाइड, इनको इजीली वी कैन अंडरस्टैंड. डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या आते हैं? मैंने वर्ड्स आपको बताए थे. डेमोन्स्ट्रेटिव करना मीन्स पॉइंट आउट करना. सो दिस, दैट, these, those. With the help of these words you can point out of the particular thing, particular person, particular anything. Okay, so possessive, possessives, my, our, your, his, her, its, their. Adjective, each, every, some, any, little, few, many, a lot of. Article, a and the. Use of determiners. So determiners are used with nouns which may be countable or uncountable form. So some example are here. First, I have only a few coins in my pocket. So used with the countable or uncountable nouns. So यहाँ पर जब few की बात करेंगे means these are countable. You can count the coins. So here the categories is in countable nouns. Several things were suggested by them. There are many chairs in the room. A lot of plants are growing in the garden. So you can count the plants, you can count the chair, you can easily count the things or coins also. Okay, so B categorized is examples. Any of your friend can come with us. Any of your friend can come with us. So used as pronouns of the countable nouns. यहाँ पे जो हम इनको यूज कर रहे हैं बेटा, कैसे कर रहे हैं? काउंटेबल नाउन्स में यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज्ड एज प्रोनाउंस की फॉर्म में यूज कर रहे हैं इनको. एनी, none. So many of those boys were weak in studies. A big number of children were absent. So any, none, many, a big number of these are called as pronouns or countable nouns we can also say, na, because we can count them. We can count the children, boys, bags or friends. So we can count them. So we can include in countable categories. Next examples, all of these beautiful flowers have been sold. Much of the food has been consumed. A little of many efforts was necessary. So used as pronouns of the uncountable nouns. Can you count the all of these beautiful फ्लावर्स की बात हो रही है तो हैव बीन सोल्ड. सो कितने सारे फ्लावर्स होते हैं, बुकेज होते हैं, तो क्या उनको पॉसिबल है इतना ज़्यादा काउंट करना? छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. सो अनकाउंटेबल. मच ऑफ द फूड, मतलब खाने को भी हम कैसे काउंट थोड़ा ना करेंगे. सो दैट वुड बी डिफिकल्ट टू काउंट देम. सो दैट्स वाई वी कैन कैटेगराइज इन अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर. एग्जाम्पल, देयर इज अ लिटिल टी इन द कप. वी हैव प्लेंटी ऑफ फूड इन द बास्केट. प्लीज लेंड मी सम शुगर. तो यहाँ पे क्या है? ये सब चीजें, लिटिल, प्लेंटी, सम. सो ये 4 इनको किस चीज कैटेगरी में? इनको अनकाउंटेबल कैटेगरी में वी कैन इंक्लूड. हेयर इज अ लिस्ट ऑफ डिटर्मिनर्स एंड द टाइप्स ऑफ नाउन्स विच दीज आर यूज्ड. सो सीरियल नंबर वाइज हम करते हैं इसको. फर्स्ट में है डिटर्मिनर्स. कौन कौन से हैं? ए, एन, ईच, एवरीवन, अनदर, either. With singular countable nouns,
यहाँ पर क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन की भी बात की गई है, तो काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर we can use these words a and each, everyone, another, either with singular countable nouns, this and that with uncountable nouns, singular countable nouns, little, a lot of, a great deal of, much with uncountable nouns. आपको ध्यान रखना है किसके साथ कौन सा डिटर्मिनर्स काइंड ऑफ नाउन्स के अंदर कैटेगरी करता है, कैटेगराइज होता है. A few, several, many, these, those, four, five, both with plural nouns. ठीक है, किनके साथ होना है इसको, प्लूरल कैटेगरी में आएगा वो. More, most, all, a lot of, enough, adequate, some with uncountable nouns or plural countable nouns. The, no, some, any, my, his, her, your, our, their, its, which, whose, what, etc. with any type of nouns के साथ ये exist कर सकते हैं. ठीक है. Next, a few determiners often used. कौन कौन से use होते हैं, many and much. When we talk about many and much, so many denotes number. many क्या denote करता है, numbers को, और it is used with plural countable nouns. much किसको denote करता है, क्वांटिटी को. ओके, मच क्वांटिटी को डोनेट करता है, डिनोट करता है वो. इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल, मच ऑफ व्हाट यू से इज राइट. देयर इजंट मच जूस इन द ग्लास. देयर आर मैनी हर्ट्स इन द विलेज. मैनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स कम फ्रॉम रिच फैमिलीज. तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैनी और मच को कैटेगराइज करके. ओके, अ फ्यू, a little, a few is opposite of many. जो few है वो किसका opposite है, many का opposite क्या है, few. It denotes number and is used with plural countable nouns. A little is opposite of much. It denotes quantity and is used with uncountable nouns. So little जो है वो किसका opposite है, much का opposite है. much means ज़्यादा, little means कम. और denote किसको करता है, denote of quantity को. And we can use with uncountable noun. Okay. Examples. I am a little tired. I have a few books in my bag. There are a few girls in our class. This cup contains a little coffee. तो ये क्या है, लिटिल, फ्यू, है ना. कुछ एग्जाम्पल हैं किन चीज़ों के, बुक्स के, गर्ल्स के, कॉफीज के. तो किसके साथ कौन सा एग्जिस्ट करेगा, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ. नेक्स्ट इज ईदर, नीदर. ईदर मीन्स सभी और नीदर मीन्स कोई भी नहीं. तो ईदर मीन्स वन ऑफ द अदर पीपल टू. नीदर मीन्स नीदर ऑफ द वन नोर द अदर. ओके, तो वहां पर कोई भी नहीं है, नीदर ऑफ द वन नोर द अदर. एग्जाम्पल, यू मे टेक ईदर हाफ ऑफ द केक. यहाँ पर आप मतलब उसको क्या किया जा रहा है, यू मे टेक ईदर हाफ ऑफ द केक. आप आधा केक भी ले सकते हो. मैं से उसको ईदर कर दिया है, उसको बोल दिया है कि यू कैन टेक. ही कैन प्ले नीदर गेम. वो कोई भी गेम खेल नहीं सकता. मीन्स कोई भी, नेग्लेक्ट करना, इट्स अ नेगेटिव वर्ड. ओके, नीदर इज अ नेगेटिव वर्ड. ये क्या करता है, हर चीज को नेग्लेक्ट करता है, मना करता है. ट्रीज वर ग्रोन ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. तो ट्रीज को किसी भी साइड पर, रोड के किसी भी साइड पर ग्रो किया जा सकता है और किया गया था. नीदर ऑफ यू कैन डू. तो नीदर ऑफ यू कैन डू, यहाँ पर भी क्या चीजों को मना किया जा रहा है. ईच, एवरी. Each is used for person or thing. Definite. Every is used is more general context. तो यहाँ पे each and every किसके लिए, each यूज होता है person और things के लिए. Definite होना चाहिए. ओके, Definite means particular की ही बात होनी चाहिए. और every के अंदर हम general context की बात करते हैं. Each girl must be in uniform. हर एक बच्ची यूनिफॉर्म में होनी चाहिए. Each member of the club पार्टिसिपेटेड. यहाँ पर भी जितने भी मेंबर्स हैं क्लब के उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए. एवरी डे इज अ न्यू डे. तो हर एक दिन जो है वो क्या है, नया है. सम, एनी, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव sentences. Example,
some flowers are still in bloom. Okay, next is there is somebody in the room. Do you have any money to lend? Anybody can do it. Is there anyone in the house? तो यहाँ पे किन की बात की गई है बेटा? some और any की बात की गई है. जो some है वो affirmative sentence में यूज होता है और any जो होता है वो negative sentence के लिए यूज होता है. We can use it for negative sentences. जैसे हमने बात की any के लिए, do you have any money to lend? क्या तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं है? तो यहाँ पे any मतलब वो चीजें क्या दिखा रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस के लिए शो कर रहे हैं. नो, नन. नो इज यूज्ड बिफोर द नाउन, नन इज यूज्ड आफ्टर द नाउन. जो नो है वो किसके? नाउन से पहले यूज होता है, बिफोर द नाउन, और नन जो है वो आफ्टर द नाउन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नो टाइम टू स्पेयर. शी हैज नो टाइम. तो नो कहाँ पर यूज हुआ है? बिफोर द नाउन. नाउन क्या है? टाइम. ओके, तो बिफोर द नाउन. आई ट्राई टू गेट सम हेल्प बट देयर वॉज नन अराउंड. तो यहाँ पर भी जो नन यूज हुआ है वो आफ्टर द नाउन यूज हुआ है. ऑल, बोथ. All denotes the total of many units together and it is used with both countable and uncountable nouns के साथ. All क्या करता है? वो डिनोट करता है टोटल ऑफ मैनी को. ठीक है, मतलब ऑल, टोटल. ठीक है, उनको यूनिट को टुगेदर स्पेसिफाई करता है, उनको स्पेसिफाई डिनोट करके बोलता है. और ये काउंटेबल और नॉन काउंटेबल बोथ नाउन्स के साथ वी कैन यूज दिस. Both denotes the total of two units together. Both denotes the total of two units together. Example, all the children surrounded the clone. All the children, सभी बच्चे. ठीक है, क्लोन को घेरा हुआ था, उसके चारों तरफ थे, तो सभी बच्चे. ये काउंट कर सकते हैं बच्चों को, है ना, इसलिए काउंटेबल के साथ यूज हुआ. शी गेव मी ऑल द फ्रूट्स. अब फ्रूट्स भी क्या है? काउंटेबल है, तो ऑल द फ्रूट्स. बोथ रोमा एंड गीता आर माई फ्रेंड्स. तो दोनों की दोनों रोमा एंड गीता आर माई फ्रेंड्स. तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ऑल जो है वो किसके साथ यूज होता है? डिनोट करता है किसको? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ वो एग्जिस्ट कर सकता है. फर्स्ट, फॉरमोस्ट. फर्स्ट डिनोट्स पोजीशन. फर्स्ट किसको दिखाता है? पोजीशन को. और फॉरमोस्ट मीन्स द मेन और चीफ. ठीक है, मेन और चीफ को दिखाता है. एग्जाम्पल, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. और द फॉरमोस्ट क्वालिटी इन अ टीचर इज सिंसियरिटी. सच एंड सेम. सच इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ डिग्री. सच किसको दिखाता है? यूज टू एक्सप्रेस समथिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ डिग्री को. सेम इज यूज टू डिनोट आइडेंटिकल, नॉट डिफरेंट थिंग्स. एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन सच अ गर्ल बिफोर. कि मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी. वी हैव बीन स्टडिंग इन द सेम स्कूल फॉर द लास्ट 5 years. मैं उसी सेम स्कूल में पिछले 5 सालों से पढ़ रहा हूँ. तो यहाँ पे सेम और सच मतलब ऐसा मैंने नहीं किया, और सेम का मतलब सेम वैसा ही मैंने किया है या अभी भी कर रहा हूँ कंटिन्यू. ओके, सो ये आपके सम, सच जितने भी एग्जाम्पल्स थे आप इनको थोड़ी रीड करना बेटा, अच्छे से पढ़ना और इनको यूज करने की कोशिश करनी है. ट्राई टू मेक सेंटेंस योरसेल्फ. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.